ہائی ایڈٹ پوائنٹ اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آج سے 4000 برس پہلے دنیا میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ بر اعظم ایشیا کے شمال مغربی کونے پر ایک ملک ہے جسے شام کہتے ہیں۔ اس میں خدا کے ایک بہت بڑے پیغمبر رہا کرتے تھے جن کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس پر انہوں نے خدا سے گڑ گڑا کر فرزند کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور 86 برس کی عمر میں ان کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا جس کے معنی ہے خدا نے دعا سن لی۔ مگر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے کے تھوڑے ہی دنوں بعد خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم جاؤ بچے اور اس کی ماں کو عرب کے لخ و دخ ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ بڑے ارمانوں اور دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی تھی۔ اسے ایک ویرانے میں چھوڑ آنے کے معنی یہ تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے۔ بیوی بادشاہ مصر کی لڑکی تھی، نہایتی ناز و نعمت سے محلوں میں پلی ہوئی۔ اسے سنسان بیابان میں تنہا چھوڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ 2 ہی دنوں میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ خطرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں گزرے مگر بیٹے کی محبت اور بیوی کی الفت پر خدا کا عشق غالب آیا۔ پانی کا ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ شہزادی ہاجرہ اپنے معصوم بچے کو چھاتی سے چمٹائے ساتھ تھی۔ چلتے چلتے جب یہ چھوٹا سا قافلہ اس ویران وادی میں پہنچا جہاں آج شہر مکہ آباد ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے۔ مشکیزہ کو زمین پر رکھا، کھجوروں کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دی، ننھے بچے کو آبدادہ آنکھوں سے پیار کیا اور واپس مڑ گئے۔ بیوی چلائی اور درد بھرے الفاظ میں کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں کس پر چھوڑ چلے؟ تھوڑی دیر میں کوئی بھیڑیا آئے گا اور ہم دونوں کو پھاڑ کر کھائے گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ بات کا جواب دیا۔ مایوس ہو کر شہزادی نے پکار کر کہا، اچھا اگر جاتے ہو تو جاؤ مگر اتنا تو بتاتے جاؤ، کیا تم ہمیں یہاں خدا کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو یا کسی خفگی کی وجہ سے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈب ڈبا رہی تھی اور آواز شدت غم سے بیٹھ گئی تھی۔ بول تو نہ سکے مگر اشارے سے کہا ہاں۔ اس پر شہزادی بولی، پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ شوق سے جاؤ۔ یہی شہزادی میرے آقا علیہ السلام کی جدہ ماجدہ تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد بے کس شہزادی نے سوچنا شروع کیا کہ اس کھلے آسمان کے نیچے اور اس چٹیل زمین کے اوپر اس معصوم جان کے ساتھ زندگی کس طرح کٹے گی۔ یہاں نہ کوئی درخت نظر آتا ہے جس کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں، نہ گھاس پھوس کا کہیں پتہ ہے جس کی جھوپڑی بنا کر اپنے لال کو دھوپ سے بچاؤں۔ اس نے حسرت کے ساتھ ارد گرد کی خشک پہاڑیوں کو دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ شہزادی نے اپنے لختے جگر کو جو شاہ مصر کا نواسا اور پیغمبر شام کا بیٹا تھا پتھریلی زمین پر لٹا دیا۔ نیچے نہ کوئی بوریا تھا نہ کپڑا، اور سوچنے لگی اب کیا ہوگا۔
4 दिन के बाद जब मशकेज़ा का पानी खत्म हो गया तो नन्हा मासूम मारे प्यास के जमीन पर तड़पने लगा। उसके होंठों पर पपड़ियां जम गई और शिद्दत प्यास से उसकी जुबान बाहर निकलने लगी। माँ का दिल इस दर्दनाक नजारे से पाश पाश हो गया, मगर वो पानी कहाँ से लाए जो अपने लाल के मुंह में चुआए। ये ख्याल करके अब बच्चा कोई दम का मेहमान है, माँ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने पानी की तलाश में इंतहाई हसरत के साथ चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर पानी उनका ना था। ममता की मारी माँ बड़ी बेखरारी के साथ सामने की पहाड़ी पर चढ़ गई कि शायद वहीं से कहीं पानी का कोई चश्मा नजर आ जाए, लेकिन बेसुध वो वहां से उतरी और उसके बिलमुकाबिल दूसरी पहाड़ी पर चढ़कर पानी ढूंढने लगी, मगर यहाँ भी उसे नाकामी हुई। इतने में शहजादी को ख्याल आया कि बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर कहीं मर न गया हो। इस ख्याल के आते ही वो बड़ी बेचैनी के साथ पहाड़ी से उतरी और दौड़कर बच्चे को गोद में उठाकर छाती से लगा लिया। बच्चा अभी तक जिंदा था, मगर प्यास के मारे निहायत ही निढाल हो रहा था। उम्मीद पर दुनिया कायम है। माँ ने सोचा, लाओ एक मर्तबा और पहाड़ी पर चढ़कर देखूं, शायद पानी का कुछ सुराग लग सके। वो फिर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और दूर तक देखती रही, मगर पानी कहीं होता तो मिलता। मायूस और दिल शिकस्ता होकर शहजादी पहाड़ी से उतर आई, मगर दिल ना माना और ख्याल करने लगी कि लाओ दूसरी पहाड़ी पर भी दोबारा चढ़कर किस्मत आजमाई, मगर पानी कहाँ था। इसी तरह शहजादी ने दोनों पहाड़ियों के, जिनके नाम सफा और मरवा हैं, 7 चक्कर लगाए। हर मर्तबा आती और अपने लख्ते जिगर को देख जाती और फिर बड़ी बेखरारी के साथ पानी की तलाश में पहाड़ी पर चढ़ जाती। यही मुकद्दस बच्चा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिद्दे अमजद था, जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था। 7वें दफा जब माँ अपने बच्चे की खैरियत दरियाफ्त करने आई तो इसने बड़ी हैरत से देखा कि जहाँ बच्चा प्यास के मारे एड़ियां रगड़ रहा है, वहाँ कुछ कुछ नमी नजर आती है। उस नमी में पानी झलक रहा है। मसरत और ताज्जुब के इंतहाई जज्बात के साथ बड़ी फुर्ती से शहजादी आगे बढ़ी और बच्चे का पांव आहिस्ता से हटाकर हाथों से जमीन कुरेदने लगी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब मिट्टी हटाते ही जमीन में से पानी निकलने लगा। जो जो शहजादी मिट्टी हटाती, पानी जोर से निकलता, यहाँ तक कि जमीन पर बहने लगा। अनबसात के मारे मायूस माँ की बाँछें खिल गई। उसने दौड़कर बच्चे को गोद में उठाया और चुल्लू में पानी लेकर उसे पिलाया। तब कहीं बच्चे की जान में जान आई और उसने अपनी कठोर सी आंखें खोल दी, जिन्हें देखकर शहजादी फरते मसरत से बेखुद हो गई और बेइख्तियार खुदा के हुजूर सजदे में गिर पड़ी, जिसने अपनी कुदरत से इस पथरीली जमीन में चश्मा पैदा कर दिया था। पानी अब भी बह रहा था और इसकी नकासी में बराबर ज्यादती होती जा रही थी। शहजादी ने यह देखा तो जल्दी जल्दी आसपास से पत्थर इकट्ठे किए और चश्मे के चारों तरफ एक डोल बना दी ताकि बहकर पानी जाये न हो जाए। पानी बहुत जल्द पत्थरों के किनारों तक आ गया और एक हौज सा बन गया। अरब में पानी बहुत ही कम था। मुख्तलिफ कबीले अपने डेरे खैमे लिए सारे मुल्क में इधर से उधर और उधर से इधर फिरते रहते थे। जहां पानी देखते वहीं खैमे लगाकर उतर पड़ते। जब तक पानी रहता वो भी वहां पड़े रहते। जब खुश्क हो जाता तो अपने खैमे उखाड़ दूसरे चश्मे की तलाश में आगे रवाना हो जाते। यहाँ भी यही हुआ। एक कबीला जिसका नाम जरम था, इत्तेफाक से इधर से गुजरा
तो उसने देखा कि चटेल और पथरीली वादी में एक चश्मा जारी है और एक औरत बच्चे को गोद में लिए वहां बैठी है। पानी को देखकर कबीले वालों का दिल ललचाया। इन्होंने कहा, नेक खातून, इस वीरान वादी में आप अकेली किस तरह अपनी जिंदगी बसर करती होंगी? आप कौन हैं और कहां से आई हैं? शहजादी ने जवाब दिया, मैं मिस्र के रहने वाली हूँ और शाम से आई हूँ। मुझे मेरे शौहर खुदा के हुक्म से यहाँ छोड़ गए हैं। मेरे बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने महज अपनी कुदरत से इस जंगल में ये चश्मा जारी कर दिया है। ये सुनकर कबीले वालों ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो हम इस चश्मे के आसपास आबाद हो जाएं। हमें पानी मिल जाएगा और आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला के इस अजीब इंतजाम को देखकर शहजादी हैरान रह गई, मगर उसने बहुत ही खुददाराना लहजे में जवाब दिया कि मैं बेशक आबाद हो जाएं, मेरा कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं चूंकि चश्मे की मालिक हूँ, इसीलिए शर्त यह है कि पानी के मावजे में आप लोग मेरी और मेरे बच्चे की जरूरियात पूरी करें और ये बच्चा बड़ा होकर आपका सरदार हो। मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि ये मामूली लड़का नहीं बल्कि शाह मिस्र का नवासा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर का बेटा है। कबीले वालों ने बड़ी ही खुशी और एहसान मंदी के साथ ये दोनों शर्तें मान ली और वहां आबाद हो गए। इस तरह शहर मक्का की बुनियाद पड़ी, जो आज तमाम दुनिया के मुसलमानों का मजहबी मरकज है। चश्मा भी मौजूद है, अगरचे उसका पानी नीचे उतरकर अब कुएं की शक्ल में तब्दील हो चुका है, जिसका नाम जमजम है। बाज औकात आम नजर में मामूली होते हैं, मगर उनका असर अक्सर औकात निहायत ही अजीम शान होता है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के इसी वाक़े को देख लो। उनका पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना बज़ाहिर एक मामूली बात थी, मगर यही वाक़या बाद में एक यादगार बन गया। चुनाचे आज भी जब हजारों लाखों मुसलमान मक्का मोज़मा में हज के लिए जमा होते हैं, तो हज के दूसरे अरकान के साथ सफा और मरवा के दरमियान भी जरूर दौड़ते हैं। बाद के अयाम में इन्हीं तारीखी पहाड़ियों में से एक पर चढ़कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ऐलान नबुवत फरमाया था। इस तरह के क़सासुल अंबिया की सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।